So exercise 7.1, question number 16. Okay. Question is two tangents to the parabola y square equal to 8x meet the tangents at the vertex in the points P and Q. So क्वेश्चन एकदा लक्षात घ्या कशा प्रकारचा क्वेश्चन आहे. y स्क्वेअर इक्वल टू 8x हा एक पॅराबोला आहे. मुळात आपण अगोदर एक पॅराबोला काढून घेऊ. So this is the parabola y square equal to 8x, okay, which is symmetrical about positive x-axis. Vertex is origin. Okay, so this is the vertex. Now next thing, two tangents are drawn to this parabola. Two tangents are drawn to this parabola. Let us say this is one tangent, this is another tangent. So these are the two tangents. And these two tangents meet the tangents at the vertex in the points P and Q. Now see, what is the tangent at the vertex? This is origin, which is nothing but vertex of this parabola. So tangent at vertex is nothing but this axis. Which is this axis? Y axis. Okay. So this is y, y dash. This is x, x dash. So this particular line is tangent at vertex, and the point of intersection of these two tangents with this tangent are P and Q. ठीक है, ये दो पॉइंट हमें दिया है. These are points P and Q. Two tangents are intersecting the tangent at the vertex in the points P and Q. Next thing, if PQ is equal to 4, so this distance PQ is given as 4. Prove that the equation of the locus of the point of intersection of two tangents. Now what is the point of intersection of two tangents? This is one tangent, this is another tangent. Point of intersection is this point, which is nothing but R. ठीक है, so let us say this point is R. यहाँ पर P और Q हुआ है, so this point is R, and we have to find out locus of this point R. Clear? We have to find out locus of this point R. So this is the question. And the locus should be y square equal to 8 in bracket s plus 2. Okay, fine. Now see, in this question जहां पर भी जिस भी पॉइंट का हमें लोकस निकालना होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं x1 y1. ठीक है, तो जो r है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके? लेट r x1 y1 be the point of intersection of two tangents. इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे. क्लियर? अब यहाँ पर टेंजेंट 1 और टेंजेंट 2 है, तो इसका आपको लोकस निकालने के लिए जो भी गिवन चीजें हैं, ठीक है, व्हाटएवर इज गिवन, PQ दिया हुआ है आपको 4, PQ 4 दिया हुआ है, तो ये तो हमारे लिए अननोन होता ही है. x1 y1 इट इज अननोन एंड इट विल रिमेन एज इट इज. ठीक है, इन द इक्वेशन ऑफ द लोकस. नाउ व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P एंड Q? P और Q के कोऑर्डिनेट्स भी हमें लगेंगे. अब देखिए, P and Q both lies on the y-axis. P and Q both lies on the y-axis. So therefore their x coordinate must be 0. P और Q दोनों का x coordinate क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. और y coordinate हमें मालूम नहीं है. So we'll take that y coordinate as let P 0 k1 and Q 0 k2. इन दोनों P और Q का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका k1, इसका k2. नेक्स्ट, अब अगर हम ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, दोनों भी टेंजेंट के A एंड B, ये दोनों जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर हम इसे कार्टेशियन फॉर्म में लेते हैं, मतलब कि
x1 y1 x2 y2 इस टाइप में अगर लेते हैं, सो देयर विल बी मोर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके बढ़ जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स विल बी मोर, क्योंकि देखिए ये भी अननोन है, 0 k1 0 k2, दिस इज ऑल्सो अननोन, k1 k2 मालूम नहीं है हमें। सेकंडली यहाँ पर भी आप x1 y1 x2 y2 लेंगे तो ये भी अननोन हो जाएंगे, तो आपके लिए x1 y1 x2 y2 और k1 k2 इतने सारे अननोन हो जाएंगे। To avoid that, we can solve this problem, particular problem in parametric form. ठीक है, हम पैरामीट्रिक फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लेंगे लेट a t1 एंड b t2, तो a और b पॉइंट्स को हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में लिया, दैट इज t1 एंड t2। अब मेरे पास यहाँ पर दो वेरिएबल है, इधर भी दो वेरिएबल है, दो और दो चार ही होगा, दो वेरिएबल हमने कम कर दी, तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म में एक ही वेरिएबल आता है, ठीक है, इट इज t। नाउ गिवन पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, गिवन पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू 8x। ठीक, अब हमने t1 और t2 जो है ये लिखा है हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स होंगे, ठीक, जैसे ये जो है दिस इज t1, इधर लिखना, दिस इज t1 एंड दिस इज t2, मतलब टेंजेंट 1 एंड टेंजेंट 2, इन दोनों के जो इक्वेशन होंगे ना, वो विल बी एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ a एंड b, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ t1 एंड t2। तो मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए फार्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, पैरामीट्रिक फॉर्म वाला। मैं लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म इज, अब क्या होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म, कौन बताएगा? अब यहाँ पर x is expressed in terms of t1 and t2, y is expressed in terms of t1 and t2, ठीक है, what we will have to do, हमें एलिमिनेट करना होगा t1 और t2। So now to find out locus of r, it means to find out relation between x1 and y1। अब यहाँ पर जो रिलेशन है, इट इज अ म्यूचुअल रिलेशन, म्यूचुअल रिलेशन मतलब x1 इज इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2, y1 इज इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2। डायरेक्ट रिलेशन इसमें दिया नहीं है, तो अगर हमें डायरेक्ट रिलेशन इसमें से ढूंढना है, तो विल हैव टू एलिमिनेट दिस थर्ड वेरिएबल, दैट इज t1 एंड t2, ये हमें एलिमिनेट करना होगा, एंड दिस कैन बी एलिमिनेटेड यूजिंग इक्वेशन नंबर 6, 7 एंड वन इक्वेशन, दैट इज दिस इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि दिस इज द रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2। ठीक है, अब हम इन तीनों से इसे कर सकते हैं। अब ये शो दैट का एग्जांपल है, शो दैट में अगर आप देखेंगे तो इट इज गिवन एज y स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, तो यहाँ पर y स्क्वायर है मतलब y1 है, इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। सो सॉल्विंग इक्वेशन, दिस इज 3, ओके, 3, 6 and 7, or what, to eliminate t1 and t2। From 6, this is y1, so we can write it as y1 square is equal to 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 in bracket t1 plus t2 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी प्रूव दैट की y स्क्वायर इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर हो गई, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में लोकस में हम क्या करते हैं, रिप्लेस y1 बाय y, x1 बाय x, ठीक है, तो y1 स्क्वायर का हो जाएगा y स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया रेडी। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है जो भी गिवन में है, ठीक। अब मेरे पास यहाँ पर x1 है
और इधर T1 minus T2 ब्रैकेट स्क्वायर है. So we'll use the identity for this a plus b bracket square. So this is equal to 4 in bracket. Now this is a plus b bracket square. So it can be written as a minus b bracket square, ठीक, plus 4 T1 T2. आइडेंटिटी है a plus b ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a minus b ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4ab. नेक्स्ट, अब इन दोनों का रिप्लेसमेंट हमारे पास है. दिस इज इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट T1 माइनस T2 का स्क्वायर. देखिए T1 माइनस T2 का स्क्वायर कितना है 4, प्लस दिस इज 4 T1 T2. तो 4 में से मैंने 2 अलग लिख दिया. फिर क्या बच गया यहाँ पर 2 T1 T2. ठीक है, T1 अच्छा नहीं दिख रहा है तो ये अच्छे से लिख देता हूँ. 4 T1 T2 में से 2 अलग लिख दिया तो बच गया 2 T1 T2. अब जो 2 T1 T2 है इट इज नथिंग बट x1. यहाँ पर हो जाएगा x1 and this is from which, from this equation that is third and this equation that is 7. So this is from third and 7. फर्दर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे. दिस इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से ब्रैकेट में से 2 कॉमन आएगा तो 2 इंटू 4 हो जाएगा 8. 2 ब्रैकेट में से कॉमन ले लिया हमने. यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉमन लिया तो 2 प्लस 2 कॉमन लिया तो x1. लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है y1 स्क्वायर. फॉर इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ r क्या करना होता है हमें लास्ट स्टेप में, रिप्लेस x1 बाय x एंड y1 बाय y. तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर मतलब कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इन ब्रैकेट x1 मतलब x प्लस 2 हेंस प्रूव. ये क्वेश्चन था जो सही में एज ए डाउट हम बोल सकते हैं. वैसे डाउट सिंपल भी हो सकता है बट यस, मतलब इट इज वर्थ अ डाउट. Question number 19 from exercise 7.1. Now this is a bridge question. Okay, तो आपने ब्रिज देखा होगा. आप बोलेंगे ब्रिज तो हमने देखा है लेकिन वही देखा है गिरना का ब्रिज में वो तापी का ब्रिज. मैं उस वाले ब्रिज की बात नहीं कर रहा हूँ. जो बहुत बड़े बड़े ब्रिज होते हैं वहां पर सपोर्ट के लिए, ठीक है, सपोर्ट के लिए केबल से भी उसे टाई किया जाता है. ठीक है, केबल से भी उसे टाई किया जाता है. तो अगर आपने हावड़ा ब्रिज, जैसे मान लीजिए हावड़ा ब्रिज है तो फिर और भी जो बड़े बड़े ब्रिज है तो वहां पर केबल से टाई किया जाता है. ठीक, मान लीजिए अगर एक ब्रिज होगा मतलब कि रोडवे होगा तो यहाँ पर पिलर खड़े कर करके दोनों भी साइड पर केबल से इसे टाई किया जाता है और इस केबल्स को फिर बीच में और सपोर्ट दिए जाते हैं ताकि आपका सपोर्ट बना रहे अच्छे से ब्रिज के लिए. ठीक, तो ये उस टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है ब्रिज वाला. देखते हैं क्वेश्चन क्या है. द टावर्स ऑफ ए ब्रिज हंग इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला. अब क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड है टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग. थोड़ा सा लैंग्वेज जो है क्वेश्चन को मॉडिफाई, जो लास्ट में लिखा है देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्टिकल सपोर्टिंग केबल. सो इट शुड बी 30 मीटर्स फ्रॉम द सेंटर. 30 मीटर्स फ्रॉम द सेंटर वहां पर होना चाहिए. 30 मीटर्स फ्रॉम द सेंटर लास्ट वाला लाइन में. सो द टावर्स ऑफ ए ब्रिज हंग इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला have their top 30 meters above the roadway and are 200 meters apart. ठीक है, तो मान लीजिए let us say this is a roadway, these are the towers of a bridge. ठीक है, ये तो हो गया रोडवे, ये हो गए टावर्स और ये टावर्स के लिए आप एक केबल
रहेगा and the tops of 30 meters above the roadway. तो जो टावर से दे आर 30 meters above the roadway. ठीक, have their tops आगे and are 200 meters apart. So this is 200 meters apart. If the cable is 5 meters above the roadway at the center of the bridge. अब देखिए सेंटर ऑफ द ब्रिज कहाँ पर हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक, ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ द ब्रिज. ठीक, तो दिस सेंटर ऑफ द ब्रिज, और सेंटर ऑफ द ब्रिज पर जो केबल है, ब्लैक पेन से दिखाता हूँ, सेंटर ऑफ द ब्रिज पर जो केबल है इट इज 5 मीटर अबव द ग्राउंड. सो दिस डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज 5 मीटर. If the cable is 5 meters above the roadway at the center of the bridge, find the length of the vertical supporting cable 30 meters from the center. अब हमें लेंथ ऑफ द वर्टिकल सपोर्टिंग केबल, ये वाला जो होता है, दीज आर द वर्टिकल सपोर्टिंग केबल, इसे हम यहाँ से वर्टिकल सपोर्ट देते हैं केबल. ठीक, तो ये वाला जो वर्टिकल सपोर्टिंग केबल है वो इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर. तो जो वर्टिकल सपोर्टिंग केबल है इट मस्ट बी अराउंड ओवर हियर. ठीक है, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर. तो इस वर्टिकल केबल का हमें हाइट निकालना है. नौ, अब इस टाइप के प्रॉब्लम में जब भी आपको ये वाला इस टाइप का प्रॉब्लम होगा, so this point has to be taken as the origin, then it will take a shape of parabola. ठीक, यहाँ पर हो जाएगा वर्टेक्स, ये जो है दिस इज एक्स एक्सिस, this roadway is nothing but x axis and this center line is nothing but y axis. क्लियर, तो हम यहाँ पर नॉमेनक्लेचर लिख लेते हैं. So this is vertex of the parabola which is a, let us say this point is B, मतलब top of the tower. This is another top of the tower which is, let us say, C. ठीक, और हमें लेंथ ऑफ द ये निकालना है वर्टिकल सपोर्टिंग केबल, लेंथ ऑफ द वर्टिकल सपोर्टिंग केबल. तो ये वर्टिकल सपोर्टिंग केबल है, इसे हमने बोल दिया लेट अस से PQ. ठीक है, अब ये जो CAB जो कर्व है इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला. इट विल बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला. जो केबल हैंगिंग केबल होगा इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला. यहाँ पर हो जाएगा वर्टेक्स, दिस इज वर्टेक्स एंड दिस इज योर पैराबोला. ठीक, अब हम इसमें सब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. अब देखिए सबसे पहले तो जैसे पॉइंट बी है, पॉइंट बी, नाउ दीज टू टावर्स आर 200 मीटर अपार्ट. ठीक, तो इसका मतलब सेंटर से इधर कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आपका 100 मीटर. सिमिलरली इधर भी हो जाएगा 100 मीटर. सो एक्स कोऑर्डिनेट जो है इस पॉइंट के लिए, पॉइंट बी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि 100, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, दिस इज वर्टिकल डिस्टेंस व्हिच इज नथिंग बट 30. ठीक, सिमिलरली जो पॉइंट PQ है, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट देखें PQ के, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P, इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम सेंटर, मतलब कि ओरिजिन से. तो ये जो x कोऑर्डिनेट है इसका हो जाएगा 30. ठीक, और वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, तो वही तो हमें ढूंढना है, व्हिच इज नथिंग बट l, लेट अस से. तो हमने वर्टिकल डिस्टेंस लिख दिया l. सो दिस इज 30 कॉमा l, p के कोऑर्डिनेट हो गए. क्लियर है.
अब जो पैराबोला है सी ए बी, इसका इक्वेशन आपको निकालना पड़ेगा। इक्वेशन के लिए आपको वर्टेक्स मालूम होना चाहिए। दिस इज द वर्टेक्स। वर्टेक्स कहाँ पर है इसका? 0,5 पर। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट दिस मच, दैट इज 5. So vertex of parabola is at a 0,5 and axis, अब पैराबोला का एक्सिस कौन सा है देखिए, एक्सिस इज नथिंग बट y एक्सिस एंड एक्सिस इज पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक, सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कर्व CAB, ये वाला कर्व CAB, दैट इज पैराबोला इज, अब जो इस टाइप का अपवर्ड पैराबोला जो होता है, अपवर्ड, इसका इक्वेशन क्या होता है बताइए? अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? y is what? x square is equal to 4by, करेक्ट। अब मैंने यहाँ पर y लिखा नहीं, x square is equal to 4by, लेकिन वो कब होगा? जब आपका वर्टेक्स ओरिजिन पर होगा। लेकिन हमारा जो ओरिजिन है अभी ये शिफ्ट हो गया ऊपर यहाँ पर, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का इक्वेशन लागू होगा। ठीक है, तो शिफ्ट ओरिजिन कहां पर शिफ्ट हुआ है? 0,5 पर, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर, जो कि है एक्स स्क्वायर। ठीक, या फिर आप डायरेक्टली ना लिखते हुए इसे लिखिए x माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर। इक्वेशन इसके लिए है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। कब? जब ओरिजिन वर्टेक्स होगा। लेकिन अब ओरिजिन वर्टेक्स नहीं है, वर्टेक्स ऊपर शिफ्ट हो गया है, तो x विल बी रिप्लेस बाय x माइनस 0। ठीक है, सिमिलरली 4by, so it is 4b and this y will be replaced by y minus 5. क्यों? तो आप इसका रीजन लिख लीजिए, सिंस ओरिजिन शिफ्टेड टू 0,5। इसके लिए तो इक्वेशन ये हो गया, ये अगर पैराबोला ऊपर हो गया या फिर नीचे हो गया, किधर भी जा सकता है ये, so then in that case x should be replaced by x minus h, y should be replaced by y minus k। ये आपका h k हुआ बेसिकली। तो इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b इन ब्रैकेट y माइनस 5। सो लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ दिस पैराबोला इज पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। एक तो वर्टेक्स से तो पास हो ही रहा है, या फिर यहाँ से भी और यहाँ से भी, सी ए बी तीनों में से ये वाला आपका पैराबोला पास होता है। ठीक, तो उससे हमें वैल्यू ऑफ b निकालना पड़ेगा टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पैराबोला। b जो है पॉइंट b, इसके कोऑर्डिनेट है 100 और 30। तो मैं लिखता हूं इक्वेशन 1 या फिर पॉइंट b दैट इज 100, 30 satisfies इक्वेशन 1, क्योंकि वो उस कर्व पर है, मतलब सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब हो जाएगा 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 4b इन ब्रैकेट y माइनस 5 मतलब 30 माइनस 5। सो यू गॉट व्हाट? 100 इंटू 100, ये तो हो गया 100 स्क्वायर, 30 माइनस 5 कितना हुआ? 25। इधर आ जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू 4b। ठीक, 25 4 जा 100 और ये दोनों 4 कट हो गए, तो b इक्वल टू कितना हो गया? 100। दिस इज द वैल्यू ऑफ b। So therefore equation of parabola is, अब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b मतलब कि 4 इंटू 100 ब्रैकेट में y माइनस 5।
So which is nothing but x square is equal to 400 in bracket y minus 5. तो आपको अभी जो पैराबोला है CAB इसका इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन में हमें निकालना है ये लेंथ है ना, दिस लेंथ वी हैव टू फाइंड आउट। अब जो पॉइंट P है इट आल्सो लाइज ऑन द पैराबोला। पॉइंट P भी कहां पर है? पैराबोला पर है। सो दिस पॉइंट P विल आल्सो सैटिस्फाई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नीचे लिखेंगे आल्सो पॉइंट P that is 30 comma L satisfies the equation of parabola। ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा। जो भी पॉइंट्स पैराबोला के ऊपर है, ऑल द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू 30, y की वैल्यू L हम ले लेंगे। तो x स्क्वायर मतलब हो गया 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 400 in bracket L minus 5. Solving this will get value of L। तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 900 is equal to 400 in bracket L minus 5। 0 0 कट हो गया। So 9 by 4 is L minus 5। So L is equal to 9 by 4 plus 5। L is equal to 29 by 4। So it is 7.25 meters। Additional 7.1 question number 18। An arc is in the form of a parabola with its axis vertical। ठीक है, एक्सिस कैसे आपका? वर्टिकल, मतलब कि y axis is the axis of the parabola। Next, the arc is 10 meter high and 5 meter wide at the base। 10 meter high and 5 meter wide at the base। ठीक है, अब देखिए जब इस टाइप का वर्टिकल पैराबोला बोला है ना, वर्टिकल पैराबोला, तो आप कोई भी ले सकते हैं। मतलब आप या तो ये वाला लीजिए या फिर ये वाला लीजिए, क्योंकि एक्सिस वर्टिकल बोला है तो एक्सिस इसका भी वर्टिकल है, इसका भी वर्टिकल है, दोनों का एक्सिस कैसे है? वर्टिकल है। ठीक, तो हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं इस टाइप से लेता हूं, दिस इज द पैराबोला। ये पैराबोला होगा जिसका एक्सिस वर्टिकल है। आगे और क्या लिखा है? An arc is in the form of a parabola whose axis vertical। The arc is 10 meter high and 5 meter wide at the base। तो अगर मैं यहाँ पर एक डॉटेड लाइन निकालता हूं जहां तक कि आपका ये आर्क है, so this vertical distance is 10 meter। so it is 10 meter high। also it is 5 meter wide at the base। तो जो बेस पर it is 5 meter wide, मतलब कि इधर हो जाएगा आपका 2.5 मीटर, इधर हो जाएगा 2.5 मीटर। 3 पॉइंट्स मिलते हैं आपको। दिस इज वर्टेक्स व्हिच इज नथिंग बट ओरिजिन। ये जो पॉइंट है, लेट अस से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। हमें इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालने होंगे, ए और बी के। अब ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? देखिए ए के कोऑर्डिनेट होंगे 2.5 है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2.5, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब हो जाएगा -2.5। और y coordinate is this much, that is 10। it is also in negative direction, so that is -10। जो b है इसका x coordinate होगा 2.5 पॉजिटिव डायरेक्शन में, और y coordinate हो जाएगा सेम 10 नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब -10। ठीक, and now what we have to find out?
हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। और यहां से 2 मीटर हाइट पर, मतलब कि यहां से नीचे इधर, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच वाइड इट इज। हमें ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस व्हिच इज नथिंग बट लेट अस से पी क्यू। अब कोऑर्डिनेट देख के पी और क्यू के क्या होंगे। पी का कोऑर्डिनेट हमें एक्स साइड पे कितना है मालूम नहीं है, सो लेट अस से पी का कोऑर्डिनेट x1 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, कितना डिस्टेंस है, मतलब कि 2 मीटर, सो इट इज ऑन द नेगेटिव साइड, सो इट इज -2। तो ये हो गए p के कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, x कोऑर्डिनेट हमें मालूम नहीं है तो हमने ले लिया x2। y कोऑर्डिनेट कौन सा होगा इसका, ये वाला डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस व्हिच इज नथिंग बट 2, सो हियर इट इज -2। हमने सब कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिख दिए। सो आवर टारगेट इन दिस क्वेश्चन, अब हमने क्वेश्चन को फ्रेम किया है कि एनालिटिकल फिगर ड्रॉ करके 10 मीटर हाई पैराबोला है जिसका की विड्थ 5 मीटर है एट द बेस। ठीक है, वर्टेक्स जो है मैंने ओरिजिन पर लिया तो कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे आपके। आप कहीं पर भी ले सकते हैं, मैंने पहले बताया, ऊपर वाला ले सकते, नीचे वाला ले सकते, वर्टेक्स आपको जहां चाहिए वहां पर ले सकते। ठीक, लेकिन जो हमने ओरिजिन पे लिया बिकॉज इट मेक्स क्वाइट सिंपल कैलकुलेशन। अब और टारगेट क्या है, टू फाइंड पी क्यू, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। पी क्यू डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स मतलब x1 और x2 मालूम करने पड़ेंगे। एंड दिस पी एंड क्यू बोथ द पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला। ठीक, तो चलिए x1 और x2 ढूंढने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला लगेगा, क्योंकि तभी हम x1 और x2 निकाल पाएंगे। तो आप लिखते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, ठीक है, अब ये वाला कौन सा इक्वेशन होगा, दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला, this is downward parabola, so equation of parabola is x square is equal to -4by। ऊपर अगर हम लेते हैं तो हो जाएगा x square equal to 4by, नीचे लिया तो x square equal to -4by। now this parabola is passing through a as well as b, ये दोनों a और b से आपको दोनों भी पॉइंट्स इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेंगे। पॉइंट b 2.5 -10 सेटिस्फाइज इक्वेशन 1 जो कि यहाँ पर। अब एक्स स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर इक्वल टू -4by, सो -4b और y कितना है आपका -4। 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25 इज इक्वल टू 4 into 10 40b, so b is equal to what, 6.25 upon 40। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ b। कुछ कैलकुलेशन हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। सो देयरफॉर अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला एग्जैक्ट मिलेगा आपको। इक्वेशन ऑफ पैराबोला बिकम्स, अब हमें b की वैल्यू मालूम होगी, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4by, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4b मतलब कि 6.25 अपॉन 40 इंटू y। so it becomes how much, x square is equal to 4 10 45 हो जाएगा। ठीक है, so x square is equal to -6.25 upon 10, so it is 0.625 y। क्लियर, so this is the parabola। अब जो पॉइंट P और Q दोनों भी कहां पर लाई करते हैं, पैराबोला पर लाई करते हैं, तो नीचे लिखेंगे दोनों
आपको x1 और x2 का आंसर वहां से मिलेगा। ऑल्सो पॉइंट्स P and Q lies on the parabola, ठीक है। सो देयरफॉर अब P के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कॉमा -2, यहाँ पर हम डालेंगे। सो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x1 स्क्वायर इक्वल टू -0.625, ठीक, एंड इंटू y मतलब -2। सो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 625 इंटू 2। यहाँ पर आप एक कैलकुलेशन अलग भी कर सकते थे, अगर हम इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर ले तो भी चलेगा। ठीक है, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1.25 एंड जो x2 स्क्वायर है इट इज इक्वल टू -0.625 x2 स्क्वायर, इट इज -0.625 इंटू y मतलब -2। ठीक है, तो x1 स्क्वायर हो गया, x2 स्क्वायर हो गया। अब हमें x1 और x2 निकालना है, तो x1 क्या हो जाएगा, सी x1 इज ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो प्लस और माइनस भले होगा, लेकिन हम कौन सा आंसर कंसिडर करेंगे, ओनली माइनस वाला, क्योंकि x1 इज ऑन द नेगेटिव साइड। तो अंडर रूट ऑफ 1.25 और इधर हो जाएगा आपका x2, ये प्लस वाला होगा, विच इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 1.25। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है p की, तो देयरफॉर p का जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, p x1 मतलब माइनस अंडर रूट 1.25 कामा -2, और q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे प्लस अंडर रूट 1.25 कामा -2। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान में रखिए, लास्ट वाले प्रॉब्लम में भी आया था, जब आपके डिस्टेंस आपको निकालना होता है किसी भी दो पॉइंट में, ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2, यहाँ पर। ठीक, इसका हम लेते हैं मॉड। मॉड किस लिए लेते हैं, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरी चीज, अगर आपके x1 अलग है, y सेम है, तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा x1 माइनस x2, अगेन इसका मॉड लेना ही होगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट टेक्निक। ये वही फार्मूला से अंडर रूट ऑफ, क्योंकि जब आप अंडर रूट करते हैं तो x माइनस एक्स जीरो हो जाएगा, या फिर यहाँ पर y माइनस वाई जीरो हो जाएगा, तो y एलिमिनेट होता है यहाँ से x एलिमिनेट होता है। सो यूजिंग दिस आप इन दोनों का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जब ये वाला जो है, दिस इज एट द डिस्टेंस ऑफ 1.25, दिस इज आल्सो एट द डिस्टेंस ऑफ 1.25, सो देयरफॉर जो आपका PQ है इट इज नथिंग बट 2 इंटू, या फिर आप लिख लीजिए यहाँ पर अंडर रूट 1.25 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 1.25, so it is nothing but 2 into अंडर रूट 1.25, so it is nothing but 2 जब अंडर रूट में जाएगा तो हो जाएगा 4 into 1.25, which is nothing but अंडर रूट ऑफ 5, यूनिट सेंटीमीटर है मीटर। अब इस वाले क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर ये पॉइंट में आया था, तो हमने यहाँ से लेके आगे पूरा पॉइंट में ही सॉल्व किया आखिरी तक। यहाँ पर आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए फ्रैक्शन आल्सो, ठीक है, 6.25 तो फ्रैक्शन में हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करते हो तो आप फ्रैक्शन में भी आगे सॉल्व कर सकते हो, तो आपके सारे आंसर्स फिर फ्रैक्शन में हो जाएंगे।
यहाँ पर हमने डेसिमल में सॉल्व किया है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं।